Bismillah. This is our third lecture from the series of basic econometrics course. In the previous lecture, we already discussed the basic concepts of econometrics and definition of econometrics. What are the types of econometrics and why econometrics is treated as separate discipline, and what is the methodology of econometrics. We already discussed all these contents in the previous lecture, as well as we already discussed some basic concepts like regression, correlation, causation, and what are the types of data and measurement of data. All these contents we already discussed in the previous video lectures. So for the today's lecture, we have some contents like what is a population regression. So we will discuss about, so we will start from the population regression, sample regression function, and the meaning of term linear, and the significance of stochastic error term. So let's get started from the concepts of population and sample one by one. So, population regression basically represent the relationship between one dependent and more than one independent variable within the population. Like if we have population, then we have to find the function of the population regression function. Suppose that is y that depend on x1 and x2 and x3. Suppose y is totally depend on the three variables, and we have to find the relationship between these three variables with the y variable in the entire population. Then we can follow the population regression function. Basically, if you look at the definition of population, population basically is a totality of observations. So a totality of observations is called population. And a sample basically is a part of population that can be used in the process. So if you look at the population regression function or population regression curve, so that is basically is a locus of conditional mean values of dependent variable for the fixed values of explanatory variables. So if we look at the population regression curve, like these are x values, suppose these are y values, and we have this type of equation, curve, then we can see these are mean values. So population regression curve basically is a locus by joining these mean values. So this diagram will come in the next slide. So we can check easily, and we can check the difference when we take the hypothetical example of 60 families income and 60 families consumption in the next slide. So if we look at the regression equation basically is simple regression equation that depend on the two variables or more than two, and ui basically is the error term, and beta naught, beta 1, beta 2 are the parameters that can be estimated, and we have concern with the parameters estimation. So if we look at the statistical estimation, so in the statistical estimation, we take the data and we regress the data and obtain the values of the parameters. So if you check the next slide, then you can see what are the properties or some more explanation of the population regression function. So population regression function basically is a predictive and explanatory purpose. So we can use a population regression function for the prediction and explanation purpose. So if you look this one, so suppose we have, this is x value, this is y value. As I said before, x basically is the income, and y is the consumption of the family expenditures. So that is if you look at the example of 60 families. So in this example, they took the
X variable as a income and Y variable as a population. So we can check the line that is joining by these points. So that is average values or mean values of the Y. So on the behalf of X, suppose this one joining by this value of X joining by this, and this value of X can join by this. So this is basically on the behalf of alpha and beta, or beta naught, beta 1, and beta 2. So on the behalf of beta 1, beta 2, we can predict the next hypothesis, the next variation in the population, or variation in the regression on the behalf of X. So it means we will check the variation in Y due to variation in X के X में चेंज होने की वजह से सपोज X बढ़ रहा है तो Y भी बढ़ रहा है या कम हो रहा है, इसको हम चेक कर रहे होते हैं पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। कुछ assumptions ली जाती हैं, कौन सी assumptions हैं? that include the linearity, the relationship is linear, के population regression function में हम क्या करते हैं, population को जो assumption है वो लेते हैं linear होगा क्या हमारा function। So that independence of error term, it mean के जो population regression function है इसमें एक property होगी, ये error term से independent होगा, it mean did not correlate to the error term. So a third one is homoscedasticity, that is constant variance of the residual, कि ये भी assume किया गया कि जो residual है, it mean जैसे ये UI है, ये क्या है, residual है, ये जो residual है इसका जो वेरिएंस होगा डेट मस्ट बी कांस्टेंट, और इसको वो कहते हैं सिग्मा स्क्वायर, के ओवरऑल थ्रू आउट द टाइम पीरियड जो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगी इस रेसिडुअल की, जो वेरिएंस होगा, सॉरी रेसिडुअल का जो वेरिएंस होगा वो एक कांस्टेंट होगा, और उस कांस्टेंट को सिग्मा स्क्वायर कह रहे हैं। तो पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन बेसिकली जो यूज होता है ये डिफरेंट फील्ड्स में यूज किया जाता है, लाइक इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस, डाटा एनालिसिस, यहाँ ये पॉपुलेशन रिग्रेशन को यूज किया जाता है। जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि एक एग्जांपल ली गई है, इस एग्जांपल में देखें कि एक्स एक्सिस पर वीकली इनकम है और वाई एक्सिस पर क्या है, कंजम्पशन है। इट मीन कि अगर वीकली इनकम है $80 और इस पर एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है कंजम्पशन की वो है $65, और वीकली इनकम अगर 80 से $140 पहुंच जाती है फैमिली की, और एक दूसरे और उस पे कंजम्पशन भी 101 है, और अगर वीकली इनकम क्या है 220 है तो एवरेज कंजम्पशन जो है वो है 140। इट मीन इन पॉइंट्स को, जो कि मैंने पहले बताया था, इन पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करें तो आपको एक फंक्शन मिलेगा, वो क्या होगा, कंडीशनल है क्या, पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। कंडीशनल क्यों है, क्योंकि हमने 60 फैमिलीज में से क्या ली हैं, कोई सी 10 फैमिलीज ली हैं, और क्या वाई क्या है, ये कंडीशन बेस्ड लिया गया कि 60 फैमिलीज का हमने डाटा लिया, जो कि डाटा नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है। उस डाटा को यूज करते हुए हमने क्या किया, 60 फैमिलीज की कंजम्पशन और इनकम का कंपैरिजन किया, और उसमें से हमने कोई कोई 10 फैमिलीज की एवरेज देखी, और हमें ये पता चला कि ऑन एवरेज अगर इनकम बढ़ रही है तो उनकी कंजम्पशन भी बढ़ रही है। नेक्स्ट देखें पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन की जो एग्जांपल है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि 60 पॉपुलेशन क्या है, 60 फैमिलीज की पॉपुलेशन ली गई, और उसमें हाइपोथेटिकल जो उनकी कंजम्पशन और इनकम का जो रिलेशनशिप देखा गया, और ये जो अमाउंट है वो डॉलर्स में है। So we can
सो वी कॉल दीज मीन वैल्यूज कंडीशनल एक्सपेक्टेड वैल्यूज, कि ये जो मीन वैल्यूज हैं हम इनको क्या कह सकते हैं, ये कंडीशनल एक्सपेक्टेड वैल्यूज हैं। किसकी? जो हमने फैमिलीज कंसीडर की हैं, ये जो 10 हमने ग्रुप्स लिए इनकम के, पहला ग्रुप 80, फिर दूसरा 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 220, 240 एंड 260, ये इनकम ग्रुप्स हैं। और उनके बिहार पे उनकी वीकली कंजम्पशन है। अगर इनकम है $80, तो उसकी वीकली जो कंजम्पशन है एवरेज वो है 65। और अगर 100 है तो इसकी क्या है, 77। और अगर 120 है तो इसकी कंजम्पशन क्या है, ऑन एवरेज 89। और अगर 140 है तो इनकी कंजम्पशन ऑन एवरेज 101 एंड सो ऑन। अगर 260 है तो इसकी एवरेज कंजम्पशन क्या है हमारे पास, 173 है। इन्हीं जो पॉइंट्स हैं, इन्हीं पॉइंट्स को मिला के क्या एक ये कर्व बना हुआ है, इस कर्व को हम क्या कह रहे हैं, ये पॉपुलेशन रिग्रेशन कर्व है। सो अब हम बात करते हैं सैंपल रिग्रेशन फंक्शन क्या है। बेसिकली मैंने जैसे पहले बताया कि सैंपल क्या है, इज अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। के पॉपुलेशन को अगर आप टोटल सपोज पॉपुलेशन का कोई एक पार्ट ले लें, उस पार्ट को रिग्रेस करें और उसमें वेरिएबल्स का रिलेशनशिप देखें एक्स और वाई का, तो हम उसे सैंपल रिग्रेशन कहेंगे। सो सैंपल रिग्रेशन, जैसे कि डेफिनेशन पॉपुलेशन रिग्रेशन की थी, वैसे ही सैंपल रिग्रेशन की है कि सैंपल रिग्रेशन फंक्शन रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के दरमियान जो रिलेशनशिप है विद इन सैंपल, वहाँ क्या था, विद इन पॉपुलेशन, और यहाँ क्या है, सैंपल। और सैंपल रिग्रेशन फंक्शन बेसिकली हम ये शो कर रहे होते हैं, क्वांटिफाई कर रहे होते हैं सैंपल रिग्रेशन फंक्शन को लेके, ताकि पॉपुलेशन का बिहेवियर देख सकें। इस तरह अगर हम इनके मॉडल की बात करें, तो स्टैटिस्टिकल मॉडल और इकोनोमेट्रिक मॉडल को देखें तो सैंपल रिग्रेशन फंक्शन बेसिकली, हम अगर 1 1 देख रहे हैं तो बीटा नॉट और बीटा वन, अगर हमारे पास मल्टीपल अगर सैंपल हमने ले लिया, सपोज सैंपल वन सैंपल टू को लिया है, तो हम क्या करेंगे, सैंपल वन की अलहदा रिग्रेशन लाइन शो करेंगे, सैंपल टू की अलहदा रिग्रेशन लाइन शो करेंगे, और उसको हम देखेंगे ये कितना ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है पॉपुलेशन के। सो ये नेक्स्ट स्लाइड में भी ये सारी डिस्कशन आ रही है। बेसिकली हम करते क्यों हैं, बेसिक जो सैंपल पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन पूरी पर टेस्ट करना मुश्किल है, इसलिए हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन से सैंपल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और सैंपल के बेस पे सपोज अगर सैंपल एक है, तो पहला एक सैंपल पर रिग्रेशन रन की जाएगी, दूसरे सैंपल पर की जाएगी, सपोज तीसरे सैंपल पर की जाएगी। तो मुख्तलिफ सैंपल्स पर रिग्रेशन रन करके हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे कि या जो बीटाज जो सैंपल के निकलेंगे, क्या ये अल्फा या बीटाज जो हैं ये ट्रू पॉपुलेशन के पैरामीटर्स के इक्वल हैं या नहीं है, या उसको ट्रू एस्टिमेटर उनके हैं या नहीं है, कि या ये पॉपुलेशन को थॉरोली रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो अगर देखा जाए एस्टिमेशन के हवाले से, जैसे मैंने पहले बताया कि भी हमारा कंसर्न क्या होता है, कि हमारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनके साथ जो उनके पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यूज को एस्टिमेट करना। सेम जैसे कि पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन में कहा था कि सैंपल रिग्रेशन फंक्शन भी प्रेडिक्शन के लिए यूज होगा, कि हम सैंपल के बिहाफ पे बता सकते हैं कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्या मूवमेंट्स रहेंगी दोनों वेरिएबल्स की। लाइक अगर वाई वेरिएबल हमारे पास है और वो जो डिपेंड कर रहा है एक्स पर, तो हम ये चेक करेंगे एक्स के चेंज होने की वजह से वाई में कितना चेंज है, और क्या ये पॉजिटिव है, क्या ये नेगेटिव है, क्या इसका रिलेशनशिप क्या होगा, और उसके बिहाफ पे हम होल पॉपुलेशन के लिए प्रोडिक्ट कर देंगे, ये प्रोडिक्शन करेंगे कि अगर एक्स और वाई का रिलेशनशिप पॉजिटिव है तो नेक्स्ट भी ये पॉजिटिव होगा। इसके लिए भी सेम अजम्पशंस हैं जैसे पहले मैंने उसके लिए बताई थी, कि ये लीनियरिटी पर फोकस करेगा, कि रिलेशनशिप मस्ट बी लीनियर, और इन टर्म ऑफ पैरामीटर दो इट मे और मे नॉट बी लीनियर इन टर्म ऑफ वेरिएबल। ये सारी बातें नेक्स्ट स्लाइड्स में, नेक्स्ट
चैप्टर में तो इन डिटेल होंगी, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में लिनियरिटी का एक अलहदा से हमने टॉपिक को डिस्कस करना है। और ये भी हमने बात की थी कि एरर टर्म से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, कि एरर टर्म के साथ कोरिलेट नहीं करेगा, और अदर इश्यूज लाइक मल्टीकोलिनैरिटी वगैरह, इनसे भी उसके क्या अजम्पशन है कि फ्री होगा सैंपल। अदरवाइज क्या होगा, मल्टीकोलिनैरिटी बेसिकली है क्या, कि अगर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लाइक x1 और x2 ये अगर आपस में कोरिलेट कर जाते हैं, इन दोनों वेरिएबल, तो रिजल्ट्स बाइस्ड आ जाएंगे, रिजल्ट्स अनबायस्ड नहीं रहेंगे। और ये दे नॉट मोर नो मोर ब्लू। ब्लू बेसिकली हमारे जो एस्टिमेटर्स हैं उनके बारे में कहा जाता है कि दे मस्ट बी ब्लू बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर। ब्लू क्या होगा, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर्स, कि जो हमारे एस्टिमेटर्स हैं वो बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर होंगे, कि इनमें कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, वो लीनियर होंगे, अनबायस्ड होंगे, इनका मिनिमम वेरिएंस होगा और ये एफिशिएंट होंगे। इट मीन हमारे पास इन जो ब्लू एस्टिमेटर होगा उसमें जो प्रॉपर्टीज हैं वो इस तरह की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, कि हमने जो इस तरह की चार प्रॉपर्टीज की बताया, दे मस्ट बी ब्लू। इसका मतलब क्या है, ये लीनियर होंगे, ये अनबायस्ड होंगे, ये हैव मिनिमम वेरिएंस, कि इनके जो वेरिएंस होगा वो क्या रहेगा, मिनिमम। और चौथे नंबर पे हमने कहा कि ये एफिशिएंट होंगे। अगर एस्टिमेटर एफिशिएंट होगा तो क्या होगा, इससे हम पॉलिसी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। सो सैंपल की जब भी इवैल्यूएशन करेंगे, हम अल्फा बीटा बीटास पर फोकस करेंगे, इनकी वैल्यूज को देखेंगे, और ये ट्रू एस्टिमेटर हों पॉपुलेशन के, और इनके डायग्नोस्टिक चेक पे देखेंगे कि ये नॉर्मल हों, और बाकी जैसे मामलात मैंने बताए। लिमिटेशंस क्या है, सैंपल जब भी आप सैंपल रिग्रेशन करते हैं, ये एक स्पेसिफिक सैंपल के लिए होता है, और हो सकता है कि दूसरे सैंपल के लिए ये ज़्यादा इफेक्टिव ना हो। ये डिपेंड करता है सैंपल की प्रॉपर्टीज पर। और बाज़ अगर ये हमें ट्रू एस्टिमेटर देता है तो हम उसके लिए ओवरऑल जनरलाइज कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ सैंपल, अगर पॉपुलेशन सेम है, उसकी प्रॉपर्टीज सेम है। सो बेसिकली ये एक अगर सैंपल है उसको आप टेस्ट करके बता रहे हैं, तो ये ट्रू मे नॉट दे एक्यूरेटली रिप्रेजेंट अ पॉपुलेशन रिलेशनशिप। नेक्स्ट हमारे पास एक कुछ एग्जांपल्स हैं। ये दो सैंपल्स ली गई हैं। ये दो सैंपल्स लिए गए हैं। पहला सैंपल है वही के हमने एक एग्जांपल ली थी जिसके अंदर हमने कहा कि 60 फैमिलीज की जो टोटल इनकम है, 60 फैमिलीज की टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर्स, इन दोनों के दरमियान हमने क्या देखा, रिलेशनशिप देख रहे थे पिछले एग्जांपल में जो हमने रिग्रेशन फंक्शन बनाया, जो कि पॉपुलेशन रिग्रेशन। उसी में से हमने क्या किया, रैंडम दो सैंपल लिए जिसमें एक्स ये शो कर रहा है कि कंजम्पशन क्या होगी और इनकम क्या होगी, एक्स और वाई जो इनकम और कंजम्पशन का रिलेशनशिप शो कर रहा है। और एक्स और वाई यहाँ भी देखें, दूसरा एग्जांपल है, और इनका इनकम और कंजम्पशन का रिलेशनशिप है। सपोज एक्स अगर इनकम 80 होगी, कंजम्पशन 55 है, इनकम 100 होगी, कंजम्पशन 88 है, एंड सो ऑन। अगर इनकम $260 है और कंजम्पशन 175, इसी तरह इनकम $260 है और 150, इन दोनों को क्या डाटा की मदद से क्या किया गया, इसका ग्राफ बनाया गया। उस ग्राफ में जो SRF2 और SRF1, SR हम सैंपल रिग्रेशन फंक्शन 1, और दूसरा क्या है, सैंपल रिग्रेशन फंक्शन 2, इन दोनों को एक्सप्लेन किया गया कि जब हमारे पास इनकम जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ती जा रही है। अगर आप इस ग्राफ की तरफ देखें, सैंपल रिग्रेशन और पॉपुलेशन रिग्रेशन को के रिलेशनशिप को देखा गया है। और अगर इन इन वैल्यूज को देखें तो हमारे पास ये हमने पहले बताया था कि जब भी आप पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन की बात करेंगे तो वो ऑन एवरेज वैल्यूज को शो करेगा। वो हमने कहा एक्सपेक्टेड वैल्यू किसकी है, y बटा एक्स आई, को ये मीन वैल्यू होगी। लेकिन जब आप सैंपल रिग्रेशन फंक्शन को देखते हैं तो इसकी जो ये वैल्यू है
ये जो वाई आई है, ये बेसिकली क्या इसके एवरेज पॉइंट से बढ़ जाती है। इट मीन ये जो वैल्यू है ये ओवर आइडेंटिफाइड है, और सिवाय ए पॉइंट्स के बाकी जो वैल्यूज हैं वो अंडर आइडेंटिफाइड हो जाती हैं। सो इट मीन बाजू का सैंपल हमारा पॉपुलेशन, ट्रू पॉपुलेशन का जो डिफाइन नहीं कर रहा और ट्रू एस्टिमेटर नहीं होता। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास जो स्लाइड है वो है नेक्स्ट टॉपिक ही, वो है द मीनिंग ऑफ द टर्म लीनियर। सो लीनियर रेफर्स टू द समथिंग that follows a straight line or a simple or direct relationship। कि अगर आपके पास कोई एक वेरिएबल है लाइक एक्स और दूसरा वेरिएबल है वाई, इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा, जो स्टेट रिलेशनशिप होगा, उसको हम क्या कहेंगे? लीनियर रिलेशनशिप। मैथमेटिक्स में इसको क्या कहते हैं कि जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पावर वन हो, सो दैट मीन दैट लीड्स टू लीनियर रिलेशनशिप। और अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पावर सपोज यहाँ हो 3x² प्लस 2x+1, तो यहाँ इंडिपेंडेंट की मैक्सिमम पावर अगर आप देखें तो यहाँ 2 है, तो ये नॉन लीनियर सेकेंड डिग्री पैराबोला बन जाता है। और अगर ये पावर और 3 हो जाए तो ये थर्ड डिग्री इक्वेशन बन जाएगी। इट मीन जब पावर वन होगी मैथमेटिक्स में तो इसको हम लीनियर रिग्रेशन कहेंगे। जनरल लैंग्वेज में क्या कहते हैं हम इसे? लीनियर कैन बी डिस्क्राइब एनीथिंग दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायरेक्ट एंड फॉलोज द प्रिडिक्टेबल पैटर्न विदाउट कॉम्प्लिकेशंस। के जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारी जो लैंग्वेज होगी और डायरेक्ट होगा, जो रिलेशनशिप, उसको हम लीनियर कहते हैं। लिनियरिटी इन द वेरिएबल्स इन इकोनोमेट्रिक्स। इकोनोमेट्रिक्स में बेसिकली हम ये अज्यूम कर रहे होते हैं योर रिग्रेशन मॉडल मस्ट बी लीनियर इन टर्म ऑफ पैरामीटर, टू इट मे और मे नॉट बी लीनियर इन टर्म ऑफ वेरिएबल। सो अगर आप थोड़ी देर के लिए देखें एक मॉडल को, वाई टी बेसिकली अल्फा प्लस बीटा 1 x1 t प्लस बीटा 2 x2 t plus beta 3 x3 t plus ut. So in this regression model, we have x1, x2, x3, three independent variables, and we have one dependent variable, that is basically multiple regression. So our concern is beta 1, estimation of beta 1, beta 2, and beta 3. These are the estimators. If you these are the parameter, then we if when we calculate these parameter, then that there must be estimator, and on the behalf of estimator we can predict we can make a decision and predict the relationship between x and y। कि अगर आप थोड़ी देर के लिए देखें कि यहाँ x की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है, इट मीन ये हमारे पास जो रिलेशनशिप है ये लीनियर है। इसको हम क्या कहेंगे? ये लीनियर रिलेशनशिप है। लेकिन इकोनॉमिक्स में या फाइनेंस में या कोई भी आप फील्ड ले रहे हैं सोशल साइंसेज की, वहाँ वेरिएबल्स का रिलेशनशिप लीनियर नहीं होता, जरूरी नहीं, ये नॉन लीनियर भी हो सकता है। सपोज अगर आप एक एग्जांपल के तौर पे देखें कि एक थ्योरी है जिसको कहते हैं इन्वायरमेंटल कोऑर्डिनेट कर्व, EKC। ये शो कर रहा है कि किसी मुल्क के अंदर जीडीपी जैसे जैसे इंक्रीज होगा, इट मीन इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। सो इनिशियली क्या होगा, उसके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, सारे सेक्टर्स आउटपुट ऑप्टिमम लेवल पे काम करेंगे, तो उसका एनवायरनमेंट डिग्रेड होगा, और एक वक्त एक हद तक तो डिग्रेड होगा। उसके बाद क्या, ये क्लीन होना शुरू हो जाएगा। इस जो थ्योरी है इसको प्रूव करने के लिए हम इस तरह का कोई कर्व बनाते हैं कि इनका जो रिलेशनशिप है, लाइक अगर हम एक इन्वायरमेंट को मेजर कर रहे हैं, सपोज कोई इंडिकेटर है CO2, और एक्स एक्सिस पे हमने जीडीपी लिया, हम ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे क्या हो रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है, वैसे वैसे इन्वायरमेंट भी डिग्रेड हो रहा है, CO2 का एमिशन, जो CO2 एमिशन भी बढ़ रहा है। लेकिन एक पॉइंट आएगा जहां जीडीपी मैक्सिमम होगा और CO2 एमिशन यहाँ इस पॉइंट पे मैक्सिमम है।
लेकिन इसके बाद क्या होगा, जीडीपी तो बढ़ रहा है लेकिन CO2 कम हो रहा है। सो जो रिलेशनशिप है ये इन्वर्टेड यू है। और अगर इस तरह की इकोनॉमिक्स थ्योरी को हम प्रूव करना चाहें तो हमें उसके लिए मॉडल भी डिफरेंट बनाना पड़ेगा। लाइक सपोज मैं इसी का मॉडल बनाता हूँ, तो ये बनेगा मॉडल CO2 T इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा 1 GDP T प्लस बीटा 2 GDP T का स्केयर प्लस UT। इट मीन हमने GDP स्केयर इसीलिए लिया क्योंकि हमें इसे नॉन लीनियर चेक करना है कि या इसका रिलेशनशिप नॉन लीनियर है या नहीं है। सो इट मीन हमारी अजम्पशन क्या है कि जो हमारा रिग्रेशन मॉडल होगा दैट मस्ट बी लीनियर इन टर्म ऑफ पैरामीटर, दो इट मे और मे नॉट बी लीनियर इन टर्म ऑफ वेरिएबल। सो नेक्स्ट हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं कि हमने जो अजम्पशन ली कि हमारा जो वेरिएबल होगा, जैसे मैंने पिछले एग्जाम एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि लिनियरिटी में हमने क्या कहा जी, इकोनोमेट्रिक के जितने भी हमारे पास जो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप होता है वो लीनियर रहता है। दे आर एसेंशियली सेइंग दैट they believe impact of change in the independent variables on dependent variable is constant and consistent across the entire range of values of the independent variable। जैसा कि यहाँ शो किया गया है कि X1 और X2 इनकी कोई पावर नहीं है, पावर 1 है, कोई पावर 2 नहीं है। तो इसलिए ये क्या है, जो रिलेशनशिप है ये लीनियर है। सो अगर आप देखें इसकी रिग्रेशन फंक्शन की जो ओएलएस की प्रॉपर्टीज है, क्लासिकल रिग्रेशन फंक्शन की प्रॉपर्टीज को देखें, वहां भी एक मेजर प्रॉपर्टी हमें पढ़ाई जाएगी जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें क्या है, योर रिग्रेशन फंक्शन मस्ट बी लीनियर इन टर्म ऑफ पैरामीटर। इट मीन अल्फा और जो बीटा हैं ये स्केयर फॉर्म में नहीं हो सकते, और अदरवाइज जो वेरिएबल है हो सकता है अगर हमें कोई नॉन लीनियर रिलेशनशिप शो करना हो तो वहाँ वो स्केयर में भी हो सकते हैं, क्यूब में भी हो सकते हैं, और फंक्शंस में भी हम उसे लिख सकते हैं। क्योंकि अगर आप वेरिएबल्स का मैकेनिज्म देखें तो वो एक्सपोनेंशियल भी हो सकते हैं, वो लॉगरिथमिक फंक्शन भी हमें मिल सकता है, वो हमारे पास जो फंक्शन है वो सेकंड डिग्री या थर्ड डिग्री और या पॉलिनोमियल टाइप हमें फंक्शन मिल सकता है जिसमें हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पावर को मैक्सिमम लेना हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लीनियरिटी इन पैरामीटर। जैसे कि मैंने पहले बताया कि पैरामीटर्स में हमने अज्यूम किया कि जो पैरामीटर्स हैं लाइक अल्फा और बीटा, ये पैरामीटर किसी सूरत भी स्क्वायर फॉर्म में नहीं हो सकते। इट मीन ये ऐसा नहीं हो सकता कि आपका रिग्रेशन मॉडल ऐसा हो, YT इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा 1 X1T प्लस बीटा 1 का स्केयर X2T प्लस UT। ऐसा नहीं हो सकता। हम हम पैरामीटर का स्क्वायर नहीं ले सकते और ना ही इसका कोई रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई नहीं हो सकता, रिलेशनशिप डिफाइन भी हो सकता। सो इट मीन ये अजम्पशन है, ये एसेंशियल है कि हमारा जो पैरामीटर है अल्फा बीटा या बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, ये ये जरूरी है दैट मस्ट बी लीनियर। वेरिएबल के लिए हम कह सकते हैं क्योंकि हमने रिलेशनशिप देखना होता है, वो सेकेंड डिग्री भी हो सकता है और वो थर्ड डिग्री भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। देखिए ये क्वाड्रेटिक जो फंक्शन है उसका जो शेप है, उसका जो रिलेशनशिप है वो इस तरह शो हो रहा है। इसमें देखें y इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स प्लस बीटा 3 एक्स का स्क्वायर है। इट मीन स्क्वायर टर्म की वजह से ये क्या हो रहा है, ये सेकंड डिग्री पैराबोला। और एक्सपोनेंशियल में देखें बीटा 1 बीटा 2 जो भी पैरामीटर्स हैं इनका स्क्वायर नहीं है। इसी तरह क्यूबिक में देखें x की पावर भी है
और एक्स का क्यूब भी है। तो ये इकोनॉमिक्स के जितने भी रिलेशनशिप हैं, जैसे आप देखें इकोनॉमिक्स में हम कुछ कॉस्ट फंक्शंस पढ़ते हैं, उसमें एवरेज कॉस्ट का जब कंसेप्ट आता है, सो एवरेज कॉस्ट लीनियर तो नहीं है। इसी तरह अगर आप देखें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, उसका भी कंसेप्ट देखें। इसी तरह आप अगर थोड़ी देर के लिए अज्यूम करें टोटल कॉस्ट कर्व को, तो इस तरह कुछ शेप का होता है। सो इकोनोमेट्रिक्स के जितने भी वेरिएबल्स हैं, हो सकता है कि वो नॉन लीनियर बिहेवियर को शो करें, और उसके जो रिलेशनशिप है वो कॉम्प्लेक्स किस्म का हो, जिसमें नॉन लीनियर जब भी आपका वेरिएबल होगा तो उसमें हम उसके बिहेवियर को शो करने के लिए टेक्निक्स भी डिफरेंट नॉन लीनियर की ही अपनाएंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टोकेस्टिक डिस्टर्बेंस टर्म। कि हमने बात की जैसा कि वाई टी इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा वन एक्स वन टी प्लस बीटा टू एक्स टू टी प्लस यू टी, के बीटा वन बीटा टू और एक्स और वाई, इसमें बीटा वन बीटा टू और एक्स और वाई, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, बीटा वन बीटा टू ये हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। और हम ट्रू एस्टिमेटर निकाल रहे होते हैं, अल्फा बीटा की वैल्यूज को निकाल कर उनके रिलेशनशिप को देख रहे होते हैं। लेकिन यहाँ हम इकोनोमेट्रिक्स में क्योंकि ये स्टोकेस्टिक एरर टर्म का जिक्र करते हैं, इसको हम एरर टर्म कहते हैं। और एरर टर्म बेसिकली जो हमें शो करनी है या शो होती है कि ये क्योंकि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो वो ह्यूमन बिहेवियर पर डिपेंड कर रहा है, इसी वजह से किसी भी वजह से एरर आ सकती है। उसकी कुछ वजूहात हो सकती हैं, उन वजूहात को हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्यों हमारा जो इकोनोमेट्रिक रिलेशनशिप होता है वो डिटर्मिनिस्टिक नहीं होता, वो स्टोकेस्टिक होता है। डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप में कोई एरर के चांसेस नहीं है, लेकिन स्टोकेस्टिक रिलेशनशिप में एरर के चांसेस होते हैं। सो इन चांसेस में सबसे पहला पॉइंट है कि एरर आती ही क्यों है। वैगनेस ऑफ द थ्योरी ये क्या है, that refers to the situation in which the theoretical framework, concepts and explanation lacks clarity, precision and specific details. It mean हमारे माइंड में थ्योरी ही क्लियर नहीं होती। जब थ्योरी क्लियर ना हो, सही तरह आइडेंटिफाई ना हो, प्रिसीजन उसकी ना हो सके, उसके कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह एक्सप्लेन ना हो सके, उसमें क्लैरिटी ना हो, तो ये चांस है कि एरर आएगी आपके हाइपोथेसिस को प्रूव करने में। इट मीन जब भी आप कोई एक्स और वाई का रिलेशनशिप देखेंगे तो उसमें चांसेस हैं जो एरर आने के, वो इसकी वजह से आएंगे कि थ्योरी क्लियर नहीं है आपके माइंड में। नेक्स्ट है अनअवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा। बाज़ वक़्त क्या होता है, हमें वेरिएबल्स का डाटा अवेलेबल नहीं होता, और अगर होता भी है तो बहुत कम है और उस तक एक्सेस नहीं होती, इस वजह से भी एरर आ जाती है। सो हम जो प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं, जो हम सोच रहे होते हैं, जो हम हमारी थ्योरी हमें सपोज कहती है कि वाई और एक्स का जो रिलेशनशिप होगा वो पॉजिटिव होगा, लेकिन किसी भी वजह से, चाहे वो डाटा शॉर्ट था या डाटा अवेलेबल नहीं था, हमने रिग्रेशन रन की शॉर्ट डाटा के साथ, तो हमें रिजल्ट्स क्या हुए, हम हो सकता है इसके अगेंस्ट मिल जाए। और हम उसको, ये किस वजह से आ रहे हैं, ये एरर टर्म की वजह से। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, थर्ड पॉइंट देखें, कोर वर्सेस पेरिफेरल वेरिएबल्स। बाज़ औक़ात जो हमारे मेन वेरिएबल्स हैं, हम उनको फोकस नहीं कर रहे होते। हम कोर वेरिएबल्स को छोड़ के अदर वेरिएबल जो ज़्यादा गैर ज़रूरी हैं, जितना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, हम उनको फोकस कर रहे होते हैं, और मेन वेरिएबल्स की एस्टिमेशन सही तरह नहीं कर पा रहे होते, इस वजह से भी एरर आ जाती है। कि मेन वेरिएबल सपोज हमारे पास जो एक मॉडल है इसमें या एक फंक्शन है, इसमें x1 और x2 ये हमारे वेरिएबल्स क्या है, हाइपोथेसिस बेस हैं, कि हमारा हाइपोथेसिस इन दो वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन हमने इसके अलावा कुछ कंट्रोल वेरिएबल या कोई अदर वेरिएबल्स लिए जो कि इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो अगर हम अदर वेरिएबल जो कि इतने ज़्यादा ज़रूरी ना हों, उन पर ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दें और मेन वेरिएबल्स को हम फोकस ना करें, तब भी एरर आने के चांसेस ज़्यादा हैं। बाज़ औक़ात इंसानी ह्यूमन बिहेवियर की वजह से क्या होता है, हम एरर आती है, और उस एरर आने की वजूहात में ये बेसिक वजह है, किसी भी वजह से हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो रिलायबल नहीं रहते। क्यों? क्योंकि ह्यूमन एरर
रेंडमली हमें हमारे मॉडल को डिस्टर्ब करती है। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि हम जो वेरिएबल्स की मेजरमेंट कर रहे हैं, जो प्रॉक्सीज ले रहे हैं, दैट इज़ वेरी पुअर कि वेरिएबल्स कोई भी हो हम उसको मेजर करें। हमें बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हमें मेजर करनी है। सो इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने के लिए बहुत सारी प्रॉक्सीज हैं। उन प्रॉक्सीज में से हम कोई पुअर प्रॉक्सी ले लेते हैं जो कि ट्रू रिप्रेजेंट नहीं कर रही होती इकोनॉमिक ग्रोथ को, उस वजह से भी एरर आ जाती है। बाज़ वक़्त हम क्या करते हैं, हम प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमनी को फॉलो नहीं कर रहे होते। प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमनी बेसिकली क्या है, प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमनी क्या है कि हमें डिफरेंट सॉल्यूशंस मिलते हैं वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, और उसमें सबसे जो सिंपलेस्ट और मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्लेनेशन होती है, वो बाज़ वक़्त वही बेस्ट होती है। और मोस्ट लाइकली वन होती है कि हमें या तो वो जो सब पसंद कर रहे हो, या जो मोस्ट सिंपल हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, वही हमारी जो एक्सप्लेनेशन है वो ठीक होती है। वो फिनोमेना की क्या है, ट्रू रिप्रेजेंटेशन है। बाज़ वक़्त ऐसा होता है, लेकिन हम उसे मिस कर रहे होते हैं, इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से भी हमें जो हमारे मॉडल में एरर आने के चांसेस है। लास्ट वन क्या है हमारा, रॉन्ग फंक्शनल फॉर्म, कि हमें फंक्शन लेना था लीनियर। सपोज अल्फा प्लस बीटा वन एक्स वन टी प्लस बीटा टू एक्स टू टी प्लस यू टी। हमें क्या करना था, ये लीनियर फंक्शन लेना था। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने मॉडल में नॉन लीनियर फंक्शन ले बैठते हैं, बीटा वन एक्स वन टी प्लस बीटा टू एक्स वन टी का स्केयर प्लस यू टी। इट मीन जब आपने सेकंड डिग्री पैराबोला ले ली, लेकिन आपको लीनियर लेनी थी, क्या आपने कोई लॉगरिथमिक फॉर्म ले ली, आपको लीनियर लेनी थी, तब भी क्या होगा, एरर आने के चांसेस है, और एरर आती ही इसी वजह से है। सो आज के लेक्चर में हमने देखा कि सैंपल रिग्रेशन फंक्शन, पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन, इनमें फ़र्क क्या है, और जो टर्म लीनियर है, ये मैथमेटिक्स में या जनरल लैंग्वेज में लीनियर का मतलब क्या है, कि दो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का जो रिलेशनशिप है, ये एक लीनियर फॉर्म में होता है। और हमने ये अजम्पशन भी देखी कि रिग्रेशन मॉडल दैट मस्ट बी लीनियर इन टर्म ऑफ पैरामीटर, दो इट मे और मे नॉट बी लीनियर इन टर्म ऑफ वेरिएबल। ये एक रिग्रेशन जो क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है उसके अजम्पशन है। उस अजम्पशन की बेस पे हमने बताया कि पैरामीटर्स और जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल दो इट मे और मे नॉट बी लीनियर। इट मीन आप देखें तो एक्स या एक्स का स्क्वायर या एक्स का क्यूब हमने लिया मॉडल्स में, और हमने बीटा या बीटा बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री किसी एक कभी स्क्वायर फॉर्म में नहीं लिया, और हमने एक्सप्लेन किया हमारा जो रिग्रेशन मॉडल होगा वो इन टर्म ऑफ पैरामीटर कभी भी नॉन लीनियर नहीं हो सकता। और लास्ट में हमने देखा कि जो वजूहात हैं एरर टर्म आने की आज वजह क्या है, कि जब भी हम स्टोकेस्टिक मॉडल को रिग्रेस करते हैं, स्टोकेस्टिक रिलेशनशिप को देखते हैं, तो उसमें एरर आने के चांसेस हैं। और एरर क्यों आती है, उस एरर के लिए हमने सारी डिस्कशन की कि बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जिनमें हमने कहा कि उसमें कि थ्योरी क्लियर ना हो, बाज़ को आते डेटा नहीं होता, डेटा के ना होने की वजह से, इसी तरह बहुत सारी और, जैसे फंक्शनल फॉर्म ठीक नहीं है, हमने लीनियर फंक्शन लेना था, हमने नॉन लीनियर ले लिया, इस वजह से भी बाज़ औक़ात क्या एरर आने के चांसेस हैं। सो ये सारा आज के लेक्चर के अकॉर्डिंग था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे।